Hello students, welcome to the Vikas Yadav chemistry classes. As you know, we are doing the chapter number 4 of our chemistry, the carbon and its compounds. Carbon and its compounds. In the previous video, we have done with the introduction of this chapter about the covalent bond. कि carbon can form or ultimately the covalent bond and its all compounds are covalent in nature. So we have done with the single, double and triple covalent bond with their examples. In today's video, we are going to discuss the properties of the covalent compounds. Properties of covalent compounds. Students, I think as you all know कि in the chapter number 3 you have studied about ionic bonding, the ionic compounds and the properties of ionic compounds. Comparatively we will study the properties of covalent compounds here. First property, the physical state. Physical state. The covalent compound generally exist in all the physical states, solid, liquid and gas. But mostly covalent compounds are gases. Mostly are gases, but some are solid, some are solids and liquids. I take the example of gases like H2, Cl2, CH4, NH3, SO2. All are the examples of the covalent compounds which exist in the gaseous form. In the solid we take like I2, P4, etc. In the liquids we take Br2 bromine. So most of the covalent compound exist in the gaseous state, but some also exist in the solid and liquid also. Second one, about the melting point and boiling point. स्टूडेंट्स कोवेलेंट कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इज लो एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड. इन द प्रीवियस वीडियो आपने देखा कि हाउ द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स. तो आपने देखा यहाँ पर ना कोई गेन है ना कोई लूज है, मतलब देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ आयंस in case of covalent compound. So here there is a weak forces of attraction in the covalent compound, and due to this weak forces of attraction the covalent compounds are having very less or low melting and boiling point. Melting point is low. Why it is low? Due to weak forces of attraction. Weak forces of attraction. Now I came to the third one, property, electrical conductivity. Electrical conductivity. As you all know, the electrical conductivity is mainly due to the presence of free electrons and ions. Covalent compound में तो there is no formation of ions because here only and only sharing, there is no loss or gain of electron. So यहाँ पर कोई भी ions, charge particles are not available which are responsible for the conduction of current. So the covalent compounds are the bad conductor of electric current. But ionic में आपने पढ़ा था ionic compounds are good conductor of electric current or they are conductor. But mainly in case of solutions and in the molten state, because molten state में और aqueous solution state के अंदर ही ions can be formed which are responsible for the conduction of current. So they are bad conductor or poor conductor. Due to absence of ions. I came to the last property but not the least, is very important, as solubility. Solubility के लिए एक फंडा हमेशा मैं बताती हूँ, like dissolves like. जो जैसा है वो अपने अंदर वैसे को ही डिसोल्व करेगा.
दो तरह के कंपाउंड कैटेगराइज होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर डिसोल्व्स इन द पोलर सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलर डिसोल्व्स इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो आपके जो पोलर हैं मींस आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वहां पर पोल्स आयंस आर फॉर्म्ड and these ionic compounds are dissolved in the ionic solvent or the polar solvent like the water. So आपके ionic compound थे वो they are soluble in water, but your covalent compound are not soluble in water. पानी में soluble नहीं होते, पानी में soluble नहीं होते because पानी तो polar है और covalent compounds में तो कोई polarity या polar compounds नहीं है ये. So किस में soluble होते हैं? They are soluble in the organic solvents. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होता है? ऑर्गेनिक मींस ऑर्गेनिक द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स। तो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स कैसे होंगे बच्चों? दे आर कोवेलेंट इन द नेचर। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के एग्जांपल मैं बताऊं आपको, लाइक बेंजीन C6H6, लाइक क्लोरोफॉर्म CHCl3, like carbon tetrachloride, like acetone. These are the some organic solvents in which the covalent compounds are soluble. Covalent, non-polar, they dissolve in the non-polar solvents which are organic in nature because they are carbon which are covalent in nature. So this is all about the properties of the covalent compounds. If you want to compare the properties of ionic and covalent, let's see. Ionic compound mostly are solid, but आपके covalent mostly are gases. दोनों कुछ होते हैं, solid और liquids दोनों में possible है. Ionic compounds का melting और boiling point high होता है क्योंकि वहां पर ions हैं जिनके अंदर oppositely charged ions हैं जिनके अंदर electrostatic forces of attraction है. बट जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनके अंदर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है. थर्ड वन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. आयनिक कंपाउंड्स आर कंडक्टर बट कोवेलेंट आर पुअर और बैड कंडक्टर बिकॉज यहाँ पर कोई भी आयंस नहीं होते. बट आयनिक कंपाउंड्स के अंदर उनकी एक्वस स्टेट में और उनकी मोल्टन स्टेट में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ आयंस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर देयर कंडक्टिविटी. इन द लास्ट, सॉल्युबिलिटी. Ionic compounds are soluble in water because they are polar, because they have the ions. But your non-polar compounds like covalent compounds, they are not soluble in water, but they are soluble in the organic solvent like benzene, chloroform, carbon tetrachloride, acetone, etc., etc. So this is all about student covalent bonding and the properties of covalent compounds. Okay? Now we are proceeding विद ए टॉपिक कि लेविस-डोट स्ट्रक्चर के बारे में सुना है जो कि बॉन्डिंग से ही रिलेटेड है. बहुत सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस और बहुत सारे क्वेश्चनिंग यहाँ से अराइज होते हैं. ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर और द लेविस-डोट स्ट्रक्चर. पहले भी मैं अपनी वीडियोस में इनको डिस्कस कर चुकी हूँ चैप्टर 3 के अंदर, बट फिर से मैं एक बार डिस्कस कर देती हूँ अबाउट द लेविस-डोट स्ट्रक्चर. ब्रेविस लेविस एक साइंटिस्ट का नाम था. उस साइंटिस्ट ने बताया था कि मतलब जब भी आप जैसे कि बॉन्डिंग करेंगे तो बॉन्डिंग में क्या करते हैं आप, एक एलिमेंट के सिंबल के चारों तरफ उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं. फिर आप सोचते हैं कि उसको कितना लूज करना है, गेन करना है, या कोवेलेंट बॉन्ड है तो कितना शेयर करना है. तो उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप डॉट से या क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर होती है. मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे CO2. सपोज मानिए आपको CO2 की लेविस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है. So what we do, you will write like this the Lewis dot structure of carbon. It will overlap with the oxygen. So it will share these and it will share these to come. So this is the Lewis dot structure of carbon. इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. So this is also correct one. Similarly, you take one more example like S8. S8 मॉलिक्यूल की आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? S8 जनरली हम कैसे करते हैं,
ऑर्बिटल रीजन के अंदर प्रेजेंट है तो ओवरलैपिंग से तो बॉन्ड बनाएगा ही। मैं सारे ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कर देती हूँ, क्योंकि सल्फर के पास सभी जानते हैं सल्फर के पास एटॉमिक नंबर जो सल्फर का है वो 16 है, 2866 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसको क्या चाहिए, इसको दो दो शेयर करना है इलेक्ट्रॉन्स को। तो हाउ इट कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ये कैसे अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। तो सल्फर के पास टोटल 6 हैं, दो इसको शेयर करना है तो इट विल शेयर वन विद दिस, वन विद दिस। सिमिलरली दिस हैविंग 4 एज ए lone pairs and one will share with this and one with this। तो हर एक सल्फर दोनों साइड अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन हर एक सल्फर के पास रह जाएंगे लाइक दिस। सो दिस इज द electron dot structure of an S8 molecule। In this way you can represent the Lewis dot structure और electron dot structure of any of the molecule। बस वही है, जब बॉन्डिंग करते हैं तो उसके पहले स्टेप में आप सबसे पहले उस एलिमेंट के सिंबल को उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ रिप्रेजेंट करते हैं विद बाय यूजिंग द डॉट्स और बाय यूजिंग द क्रॉस। देन आप सोचते हैं कि कितना शेयर करना है, तो अब इस तरह से जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आप डॉट से दिखाएंगे तो वो उसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर होगी। ओके, with this we are completed with the topic of bonding। Here in this video I'm going to discuss one more topic that is very important, जो कि मैं कल बात कर रही थी कि जो कार्बन है is very important for us। It is having the very immense importance or immense utility in our daily life। How important is carbon and why it is important? Because of its versatile nature। जो इसका versatile nature है उस वजह से। वर्सेटाइल नेचर का मीनिंग क्या है कि दिस कार्बन कैन फॉर्म द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स एंड दिस। अब माइंड में आता है कि कार्बन के पास ऐसा क्या जादू की छड़ी है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है कि इट कैन फॉर्म सच ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, बाकी और कोई इतने कंपाउंड्स नहीं बनाता। तो मेनली कार्बन है द टू प्रॉपर्टी। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन, catenation, and the second property is known as tetravalency। Because of these two properties the carbon can form the large number of compound or it shows the versatile nature। अब बच्चों सबसे पहले बात आती है कैटिनेशन की। 1 मार्क में कई बार डेफिनेशन और क्वेश्चन भी इस पार्ट से अराइज होता है। दिस कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है कार्बन की और आपस में कार्बन कार्बन के जो एलिमेंट और एटम्स हैं दे कैन लिंक्ड विद वन अनदर एंड दे कैन फॉर्म ए लॉन्ग चेन। लंबी चेन बनाने की प्रॉपर्टी सेल्फ लिंकिंग करके दे कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द लॉन्ग चेन। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन। तो माइंड में बात आती है कि लंबी चेन बनेगी क्यों और कैसे, कार्बन की ही क्यों बनती है। लंबी चेन तभी बन पाएगी जब जो एटम आपस में जुड़ रहे हैं, कार्बन कार्बन जुड़ रहे हैं, बिकॉज यू नो कि कार्बन कैन फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन कैन लिंक विद द कार्बन बाय द कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है बच्चों। कार्बन जुड़ रहा है, कार्बन जुड़ता जा रहा है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से, तभी तो लंबी चेन बनी। यदि बॉन्ड वीक होगा तो कुछ ही एलिमेंट्स एटम्स को आपस में जोड़ोगे तो जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। दैट मीन्स चेन बन नहीं पाएगी। So it shows or it confirms that the covalent bond between the carbon and carbon atoms is very strong। That will result in the formation of the long chain and showing the property of catenation। फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों। तो बच्चों आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में सुना हो, नहीं तो 5th चैप्टर में आप सुनेंगे। ग्रुप और पीरियड्स में उसमें एलिमेंट हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड है या क्लासिफाइड है। तो ग्रुप नंबर 14 का मेंबर है पहला कार्बन। तो इस कार्बन नाम के एलिमेंट का जो साइज होता है ना, कार्बन का जो साइज होता है ना वो बहुत स्मॉल होता है। स्मॉल साइज से क्या होता है, ओवरलैपिंग अच्छी होती है और ओवरलैपिंग जब अच्छी होती है तो ऑब्वियसली बात है बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। सो ड्यू टू दैट इट कैन शोज द कैटिनेशन। तो बच्चों कैटिनेशन दिखाता है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि साइज स्मॉल है। साइज स्मॉल है तो क्या हुआ, बिकॉज ओवरलैपिंग इज गुड।
that will result in the catenation power. Okay? तो थोड़ी सी ये प्रॉपर्टी सिलिकॉन नाम के एलिमेंट के पास भी है जो कि कार्बन के ग्रुप का ही मेंबर है, लेकिन उसके पास बस इतनी सी कैटिनेशन पावर है कि इट कैन लिंक ओनली 7 to 8 सिलिकॉन एटम्स। तो सिलिकॉन और कार्बन के अंदर कैटिनेशन पावर को देखें तो सिलिकॉन के पास बहुत ही लेस होती है, बिकॉज सिलिकॉन साइज इज लार्ज, और जब सिलिकॉन का साइज बड़ा है तो देयर इज अ लेस एक्सटेंट ऑफ द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स, और जब लेस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी दैट विल कॉज इन द वीकनिंग ऑफ द बॉन्ड, तो बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा एंड डज नॉट कॉज द फॉर्मेशन ऑफ सच ए लॉन्ग चेन ऑफ द कंपाउंड्स और द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन ए लॉन्ग चेन। So although silicon also shows the property of the catenation but not to the extent of the carbon because it having the large size, and जो silicon के पास जो bond energy, जो bond strength है, bond energy की जो value है is less, around 255 के आसपास होती है, but कार्बन जो bond की strength है, bond energy की जो value है is very high, the bond is very strong because it is having the small size. And the second one property is tetravalency. Tetra means 4. कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और बच्चों जितने ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे ऑब्वियसली बात है उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स के बनने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो मेनली 2 प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी कैटिनेशन, जो कि जितनी लंबी चेन बनेगी एटम्स की उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स के बनने की प्रोबेबिलिटी होगी, एंड सेकंड वन इज द टेट्रावैलेंसी बिकॉज ऑफ दिस वन कि कोई 1 बनाए, कोई 2 बॉन्ड बनाए, कोई 3 बनाए, बट कार्बन कैन फॉर्म द 4, तो जितने नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा बनेंगे उतने ही कार्बन कंपाउंड्स के बनने की प्रोबेबिलिटी और चांस ज्यादा होंगे। तो बिकॉज ऑफ दीज 2 प्रॉपर्टी जादू की छड़ी है कार्बन के पास, इट कैन शोज द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड एंड इट शोज द वर्सेटाइल नेचर। सो दिस वर्ल्ड और हम सब देखते हैं कि कार्बन इज because of these 2 reasons is having the very immense importance. So in this video I am ending with this topic. In the next video I came with the new topic hydrocarbons, organic chemistry, first organic compound क्या बना, but little more about this. So today I have discussed completely with the covalent bonding and the versatile nature of the carbon. With this I am ending this video. I hope you all enjoying. Thank you.